media, friends, and my very, very elite team, you know. And I'll tell you the examples when I say it elite. Uh, this project is definitely शक्तियों का मेला है. जब शक्तियाँ मिलती है तो एक अच्छी जगह पर मिलती है, एक अच्छे मौके पर मिलती है और एक अच्छी मंजिल पर मिलती है, तो वो कुछ और ही शक्तियाँ पैदा हो जाती है उसमें से. और हमारी जर्नी ऐसी ही रही है. एंड आई एम सो वेरी मच ब्लेस्ड that when I followed a musician from Rajasthan about his life story, and when I understood him, a very, very eminent Kamaija player, and had put a lot of research behind it, then I wrote this story and became more inspired to go into the community and find out कि क्या है उनमें संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में, और फिर भी उनका जीवन क्या है. तो ये सब मिला के I have written that story and then came about to finding who could be on my team. But then it all became that each and everyone you see seated here, we connected probably in minutes. Mithun ji, exactly the same thing. It was more about the content. It was more about what it wants to tell to the world. That Manganiyars who are sitting in the huts in the interior of Barmer region of Rajasthan, they have stack of passports living in a hut, but they still not get their music out there. If we bring this, a beautiful love story based on true events, and then also mesmerizing music created by the two top award-winning musicians coming together in one film, it will really bang everywhere in the world. And let me tell you, since I landed here 4 days ago and had recordings all over at Yashraj, at Vishwa Mohan Bhatt studio in Jaipur, it was very, very magical. What they have created, I cannot give you any examples of it, but it is really good. One thing I can tell you is Mithun and Syed Qadri ji, जिसको मैं शब्दों और लफ्जों का शहंशाह और बादशाह कहता हूँ. अब है ही तो फिर. And then that love story lives with that beautiful music from Mithun. It really creates a master. Similarly, when I met Ricky Cage at IFI Goa a couple of years ago, when he was there to inaugurate with our then IB Minister Thakurji. No, sister the minister. Sorry. But right after the inauguration, we met only 2 minutes and he signed it right then. That was the connection of the content and the story. We with each of them, we negotiated or we talk about the commercials way, way, way late. And you can think about how much passionate they were to join this team. And I really, really have my heartiest thank for you. It is our love, it is everyone's passion, and then bringing it in a very beautiful love story, again, based on true events. So we are out here. I am very, very proud that like Ricky Cage, from last 1 month, I'm trying to connect to him, and I only remember one movie, Catch Me If You Can. I mean, I would write hello, hi, and he said, no, I just landed in Los Angeles. So after 2 days, oh no, hold on, I'm just going to be here in London. So, but again, we are still very good friends. I mean, you know, our friendship is so powerful
that he understands what I was looking for, and we were able to bring this together, the recordings that we did, and I'm very, very thankful, sir. So, I do not have to introduce anything more. With my co-producer, Somendraji, who is right there for anything happening when I'm soundly sleeping in US, is my true partner, and I'm so lucky and blessed to have him with me. I always feel that I'm still, for every moments that are in India, I'm really here, just because of Somendraji. Thank you so much. मुकेश जी, आपने एक बात तो नहीं बताई कि आपकी जो A similar association with the lady you just heard about, Julia Bobkov. She's a violinist, lives only about 20 miles from where I am in US, about 80 miles north of New York City. And we joined through a talk show, and we became together, and then we put this short film together called The Errand. 2 years ago, it was selected on the American Pavilion of the Cannes Film Festival, and since then it has won about 18 awards. It's a short film, but I'm proud that I was associated with it. फिल्म होती है, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, लेकिन फिल्म होती है, हम सब ये जानते हैं। जो सब पूरे वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, हम सभी को थैंक्स सर। आपने पूछा कि ये प्रोजेक्ट जुड़ने से या कैसे जुड़ा हुआ, और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सभी पूरी टीम का कि राजस्थान, और आप देख रहे हैं डायस पे जितने लोग बैठे हैं उनकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी है। तो मैं बताऊंगा नहीं, पर एक एक करके सब अनवेल होगा। अभी तो रिकी भी बताएंगे, सभी बताएंगे कि कैसे हम राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट जब मुकेश जी ने करीब कोविड टाइम 2 साल पहले हमने शेयर किया, और उसके बाद हमने रिसर्च किया इसको, जैसलमेर, बाड़मेर, पूरा मांगनियार कम्युनिटी, उसके बाद में हमने पूरी इसकी स्क्रिप्ट रेडी हुई, फिर हम अनूप जी और जितने भी लोग हम हैं हमने बात किया। तो कहने का प्राउड फीलिंग है कि ये पहला राजस्थान का प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनली म्यूजिकल ट्रैवल जर्नी फिल्म है, लव स्टोरी है, बट एक जो मुकाम होता है कि राजस्थानी फिल्में जब हम रीजनल सिनेमा की बात करते हैं तो हमारा राज्य बहुत, हम पिछड़ा प्रदेश समझते हैं अपने आप को। जब हम साउथ और दूसरे रीजनल भाषा की फिल्मों को देखते हैं, हम उन्हें सीखना चाहते हैं, हम उन्हें फॉलो करना चाहते हैं कि किस तरह एक रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री डेवलप होती है। बट जब हम अपने राजस्थान की फिल्मों को देखते हैं तो पिछले 5-8 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ए फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ। इन दैट आई प्रमोटिंग द रीजनल सिनेमा, जो कि एक सिनेमा राजस्थान का डेवलप हो, वहाँ के फिल्म मेकर्स को मौका मिले, और सबसे बड़ी चीज़ होती है को प्रोडक्शन। और मुझे बहुत गर्व खुशी की बात है कि ये प्रोजेक्ट एज ए को प्रोडक्शन आज हमने यूएस और राजस्थान को एक इस तरह मुकाम पे को प्रोडक्शन किया है। और एज ए को प्रोड्यूसर जो मैं रिप्रेजेंट करके मुझे बहुत खुशी है कि एक रीजनल सिनेमा कहानी जो कि एक ट्रैवल कर रही है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, और संगीत जो एक ट्रैवल कर रहा है, और सब जो जुड़े हुए जैसे बताया विष्णु मोहन भट्ट जी, गाजी खान, मामे खान, मोहम्मद फैज, आई थिंक सभी जड़ें राजस्थान से जुड़ी और सभी वर्ल्ड वाइड उसको लोगों को जानते भी है। तो इस तरह से इस कहानी को हम पूरे वर्ल्ड वाइड ले जा रहे हैं, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे आने वाली जनरेशन और राजस्थान रीजनल सिनेमा को कितना एक सीखने को मिलेगा, जब इतने दिग्गज, इतने लोग वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत ऐसा शुक्रिया, इतना खुशी हो रही कि ये मैं आने वाला भविष्य जो 5 साल राजस्थान और रीजनल सिनेमा का क्या होने वाला है, ये फिल्म शायद उसको रिप्रेजेंट करेगी। थैंक यू। हमने भाई इस विषय पर मेरे विचार ये है, देखिए कि इसमें मुझे लगता है दोष किसी का नहीं है। ये बात समझना हम सबके लिए बहुत अहम है कि हम एक सिनेमा ड्रिवन कल्चर है, क्योंकि हमारे देश में जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिनेमा जो है वो एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी सभ्यता का।
हम सब बड़े हुए हैं, जो हमारे देश के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे बचपन का हिस्सा है। हमारे घरों में, गलियों में उनका जिक्र है, सीन्स का जिक्र है, डायलॉग्स का जिक्र है, वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। तो जब कोई भी चीज़ सिनेमा से जुड़ जाती है तो मुझे लगता है वो अपने आप इट बिकम्स दैट वे। लेकिन मुझे लगता है वो बदलाव आ रहा है। जैसे आपने सही कहा कि मुझे लगता है भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर अलग अलग, जब आप 60 किलोमीटर भी पार कर जाते हैं तो वहाँ का जो है राग बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, उसका जो तलफ़ुज़ है बदल जाता है। तो जब इतना कुछ है इस देश में, मुझे लगता है ये एक जिम्मेदारी हर आर्टिस्ट अपने में उठाए, और मुझे लगता है लोग कर भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए भी मैंने मामे खान साहब को रिकॉर्ड किया, तो मैंने उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो अपने कल्चर को लेकर, अपने संगीत को लेकर दुनिया भर में परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो बदलाव, आपने बहुत सही पूछा, वो बदलाव डेफिनेटली आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है वो समय आ रहा है, क्योंकि अब जो है इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी, उसके दरवाजे भी खुल गए हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो अलग अलग इस प्रोजेक्ट में मुझे मौका मिल रहा है कि मैं राजस्थानी म्यूजिक को जो है उस फोक को लेकर एक्सप्लोर करूँ, उसको इम्प्रोवाइज करूँ। मेरा दर्शन तो ये है कि आने वाले सालों में और भी जो है, जैसे महाराष्ट्र का जो फोक म्यूजिक है मैं उसको भी इस्तेमाल करूँ, जो पंजाब का फोक है जो इतना रिच है, बंगाल का बाउल संगीत है। मुझे लगता है इतने सारे अलग रंग है भारत में, और मैं रिकी से बिल्कुल सहमत हूँ उस विषय पर कि अगर हमें अपने संगीत को जो है एक पश्चिमी स्तर पर, एक ग्लोबल स्तर पर लेकर जाना है, तो हमें जो है अपनी पहचान। इस साल जो है 19 साल पूरे होते हैं बतौर हिंदुस्तानी संगीतकार। मेरी पहली फिल्म थी 2005 में, जिसका नाम था जहर। तो जब हम देखते हैं, मैं अपने सफर को जब देखता हूँ, चाहे मैं जहर की बात करूँ, अनवर की बात करूँ, इनफैक्ट जहर में सईद कादरी साहब मेरे साथ थे, अनवर में मेरे साथ रहे, बहुत सारी फिल्मों में हमने साथ काम किया। लेकिन जब मैं फिल्मों की अपनी बात करता हूँ, चाहे जहर हो, मर्डर 2, आशिकी 2, कबीर सिंह, तो मैं देखता हूँ कि जो चीज़ हमारी सभ्यता में एक बहुत लोहे का काम करती है, वो है हमारा संगीत। हमारा जो भारतीय सिनेमा का इतिहास भी रहा है, अगर हम 50वीं दशक की भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे हम सी रामचंद्र साहब की म्यूजिक की बात करें, हुसनलाल भगत राम की बात करें, लेटर ऑन शंकर जयकिशन, राज कपूर साहब का म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड ऑल द ग्रेट्स, हम देखते हैं कि एज अ सिविलाइजेशन संगीत जो है वो हमारे नस में बहुत बड़ी गहराई से बसा हुआ है। तो मैं यही सोच रहा था कि ये जो सफर मेरा रहा है, इस देश ने, हमारी फ्रेटर्निटी ने, आप सभी लोगों ने, हमारे सुनने वालों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पिछले 1-2 सालों से मैं इस ताक में था कि मैं अब कुछ संगीत के लिए, मैं कुछ अपने देश के लिए, मैं कुछ अपने देश की मिट्टी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और एक अलग दिशा भी इख्तियार करना चाहता हूँ। ये बातें मेरे जहन में चली रही थी, और तब मुकेश जी से मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने मुझसे वार्तालाप किया और उन्होंने मुझे अपना दर्शन बताया। और मुझे ये बात बड़ी अनोखी लगी कि ये जो पूरा जो कहानी कही जा रही है, ये संगीत के माध्यम से कही जा रही है। तो अभी आप देखेंगे कि आज का भी जो इवेंट है, अभी बहुत सारी चीजें मुकेश जी, गोविंद जी फाइनल करने वाले हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इस चीज पर है कि इस फिल्म का जो आधार है वो संगीत है। तो ये जो दर्शन है और ये जो संगीत के प्रति एक मनोबल है, एक कॉन्फिडेंस है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने यही देखा कि हम जब फिल्मों की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, आज भी हिंदी फिल्मों में हम यही बात करते हैं कि अगर म्यूजिक जो है लोगों से उसका जो है वास्ता बन जाए, तो फिल्म की जो ओपनिंग होती है बहुत मजबूत हो जाती है। इसका मतलब संगीत एक इतना मजबूत माध्यम है। तो मैं ऐसी फिल्म से जुड़ना चाह रहा था जहाँ पे मैं इस संगीत के जरिए और रंगों को पेश कर सकूं, और अपने संगीत को एक नया चैनल दे सकूं। और फिर मैंने देखा कि जो कहानी है ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। जैसे सोमेंद्र जी ने बताया कि जो लांगा कम्युनिटी है, मांगणियार है, उनके संगीत को मैंने बहुत सुना, और मुझे लगा कि इस रंग को जो है, अगर मैं भारत का वासी होने के उसका प्रतिनिधि करता हूँ तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो
उसको लेकर और सईद कदरी साहब की पोइट्री को लेकर जो हमने एक्सप्लोरेशन किया है, हमारा इंटेंशन यही है कि हम इसके भारत के इस संगीत के दुनिया के प्लेटफॉर्म तक लेके जाए, जैसे रिकी कर रहे हैं। इन्होंने हमारे देश का नाम गौरव बहुत बढ़ा दिया है। हाल ही में मेरा जो गाना था सनम रे, जो आप लोगों ने सुना है, उसकी एक धुन इस्तेमाल की गई थी एक गाने में जिसका नाम है वूपटी, जो बिलबोर्ड हिप हॉप पे नंबर 1 पे जाके बैठा, और वो एक हिंदुस्तानी धुन पर आधारित है। सनम रे एक हिंदुस्तानी धुन है। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है तैयार है कि भारत से जो संगीत आ रहा है उसके लिए, भारत के कलाकारों के लिए, भारत के संगीतकारों के लिए, और यही सही समय है जब हम अपने झंडे को और अपने क्रिएटिव बातों को एक ऊंचे स्तर पर लेके जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुकेश जी का जो दर्शन है, सोमेंद्र जी का दर्शन है, और कादरी साहब मेरे साथ में है, तो मुझे लगा ये सही समय है इस फिल्म से जुड़ने के लिए। और हमने जो शुरुआत की है वही इतनी खूबसूरत है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सफर में हम आगे कैसे बढ़ते हैं। थैंक यू। हम सब तो जानते ही हैं। I'm very grateful that you brought me on this project. And you know, nowadays the way that music is consumed in today's times, it's very difficult to make timeless music because music has become very, it's got sort of like, it's appealing for a limited time because of the way streaming works and because of the way that we listen to music. So there are very few timeless classics that come out nowadays because of this. And in the last few years, I've seen that most of the timeless classics that have come out have actually been composed by Mithun. And so I think a big round of applause to him. He's one of the greatest music directors that we have today in India. One of the most talented, and I'm a huge fan of his. So that's why for a musical that is composed by Mithun, for me to guest compose a song was equally a huge honor for me. So I'm very grateful to be on this project and to get to meet him today. But anyway, so I believe that, the one thing that attracted me to this film was that there is this huge myth in India that if you want to make something international or you want to create music that is appreciated all over the world, then we have to make music in English, or we have to make music which is Western pop or Western hip hop and genres that that the Western world makes. But that is not true, because the musicians and the films that have gotten international recognition from India have always been deeply rooted within Indian tradition. If you look at people who have won even Grammy Awards, like people like Ustad Zakir Hussain, or you look at Pandit Ravi Shankar or Pandit Vishwamohan Bhatt, or Shakti, all of them have been very deeply rooted within Indian traditions. Or even movies like Lagan or RRR and Salaam Bombay, these movies which have gotten international recognition, are all movies which are deeply rooted within Indianness. So that's the beauty of this particular movie of Millionaires of Love, that it's deeply rooted within Indian culture. And of course, for me it was a return back to my roots, because my father is from Rajasthan. And I've never been very connected to Rajasthan except for performing a few concerts over there in the past. So this was my opportunity to connect with my roots and connect with the Manganiyas and the folk musicians of Rajasthan to create this piece of music for Millionaires of Love. So very grateful to be over here and very grateful to be a part of this gathering. Thank you. क्योंकि मैं राजस्थान में पैदा हुआ, वहाँ परवरिश हुई मेरी, पहले पढ़ाई की, बड़ा हुआ, वहाँ के गली मोहल्ले, झील, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, वहाँ का वीराना भी बहुत खूबसूरत है। मैं उन सबको अपने साथ लेके इस दिल में भुटोई शहर में आया, और आज भी वही चीज़ें हैं कि कहते हैं प्यासी ज़मीन में भूख उठती है। जब उस प्यासी ज़मीन से आया हूँ, मेरे अंदर भी एक भूख है, उस भूख को मैं अपने गानों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाता हूँ। और इसीलिए मेरे गाने जो है ख़ास करके यूथ और लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और ये इत्तेफाक की बात है कि सोमेंद्र जी ने एक दिन मुझसे जिक्र किया कि सईद भाई, इस तरह की एक फिल्म जो है बनाने का ख्याल है। हमारे एक मित्र हैं मुकेश जी पारिक साहब, वो भी इस तरह से सोच रहे हैं इस फिल्म को बनाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें शामिल हो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने बाकी बातें तो बाद में सोची। मैंने कहा सईद कादरी, अब ये वक्त आ गया कि जिस ज़मीन ने तुझे सब कुछ दिया, जहाँ पे तू पैदा हुआ, जहाँ तेरी परवरिश हुई, अब उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। मैं बहुत दिनों से इस ख्याल में था कि कोई ऐसी फिल्म आए कि जहाँ मैं अपनी मिट्टी की बात कर सकूँ, जहाँ अपने एहसास और महसूसात को
लोगों तक रख सकूं, और ये मौका मुझे मिला। उसके लिए मैं मुकेश पारिक साहब का, सुमेंद्र जी का, भाई लेकी का, और मेरे दोस्त कह दें इसको, मेरा बच्चा कह दे, मिथुन के साथ काम करने का मौका मिला। और मैं इसके लिए तहे दिल से मुकेश जी आपका एक बार फिर से सुमेंद्र जी शुक्रगुजार हूँ इस मौका देने के लिए। और जहाँ तक शायरी की बात है, देखिए शायरी आपके आसपास होती है, सिर्फ आपकी नज़र की बात है, नज़रिए की बात है कि आप उस पोइट्री को कैसे देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। मतलब मसलन मैं समझाऊँ, आप जो कह रही थी गीत के बारे में, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता तो खिड़की के पास बैठा करता था अक्सर, और उस खिड़की के बाहर से कॉलेज में बहुत सारे नीम के पेड़ थे। तो जब पतझड़ का मौसम आता था तो पत्ते गिर जाते थे, और उन पत्तों का एक ढेर इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी जाती थी, उन्हें जला दिया जाता। तो मेरे जहन में एक मंजर आया कि मैंने उस पर वो एक गाना लिखा, जो जिस फिल्म में यूज किया गया बाद में, कि मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई, मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई, सूखे पत्तों का बचा ढेर जला दे कोई। तो पोइट्री आपके आसपास है, सिर्फ देखने की जरूरत है, उसको महसूस करने की जरूरत है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी दुआएं हमारे साथ रहेगी, और ये जो प्रोजेक्ट हम लेके चले इस पर जरूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच। दिल जला गाना क्यों गाया? आज माहौल नहीं है, But I just wanted to add to, add an answer to your question. So while we were recording the song, I had the honor of having Kadri ji, in the studio, and so he walked in after we had recorded about 2 or 3 lines of the song, and it was quite amazing to see him in action because. नहीं हूँ, बट हाँ मैं अपना गाना जरूर सुनाना चाहूँगा, कभी शाम ढले। ओ कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, ओ लगे हम गले तो मेरे दिल में आ जाना, मेरा घर जलाने वाले सुन मेरी, ओ तेरा घर जले तो मेरे दिल में आ जाना। और थैंक यू फॉर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे। मैं इस प्रोजेक्ट में जुड़ा जब मैं रियलिटी शो में था, विनिंग से बहुत पहले, और मुकेश जी का मेरे पास मैसेज आया था, और तब से हम कनेक्टेड हैं, और सारी अपडेट्स मुझे मिलती रही। एंड कल परसों में मैंने रिकी सर के साथ गाना डब किया है, और सैयद सर भी थे। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मुझे वो गाना मिल रहा है, और आई एम फीलिंग वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और ये कहना चाहूँगा, आप सब देख सकते हैं कि डाइस पे जितने लोग हैं, सारे के सारे जितने जानते हैं कि मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान से जुड़ा हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम और बड़ा हिस्सा जो है वो जयपुर में गुजरा। मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, इनफैक्ट मेरी जो थिएटर रंगमंच की जो जर्नी है, जो एक्टिंग से लगाव है, वो सब जयपुर में ही शुरू हुआ। बिकॉज जैसा कि सब ने कहा, यहाँ जितने महानुभाव बैठे हैं सब के सब जो हैं वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, और राजस्थान कल्चरली कितना रिच है ये हम जानते हैं। तो जैसा कि कादरी साहब ने कहा कि होता है ना कि आप जहाँ पले बड़े हैं, जहाँ पढ़े लिखे हैं, वहाँ से आपका एक नाता हमेशा रहता है, और कभी आपको ज़िंदगी में अगर ऐसा मौका मिले कि उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ का हिस्सा बनने का, तो मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे उसमें कूद जाना चाहिए। तो आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले की बात है, आई थिंक February 1st वीक का ही महीना था। हम लोग जयपुर में थे सोमेंद्र जी के फिल्म फेस्टिवल में, और वहाँ पर एक रात खाना खाने के बाद सोमेंद्र जी ने मेरी मुलाकात मुकेश जी से कराई, और वहीं डाइनिंग रूम में बैठे बैठे ही मुकेश जी ने मुझे पूरी कहानी सुना डाली इस फिल्म की। और मुझे सुन के लगा कि कुछ तो बात है इस कहानी। ऑब्वियसली इन्होंने म्यूजिक की जिक्र किया, और मुझे याद है उस वक्त मिथुन और रिकी का जिक्र उस वक्त भी हो चुका था, 1 साल पहले भी। सो जब मुझे पता चला कि ये इस तरह की एक फिल्म बनने जा रही है और म्यूजिक एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने जा रहा है, और जो कैरेक्टर्स इन्होंने मुझे सुनाए, जो कहानी सुनाई,
और उसी रात को हमने शायद अपना ईमेल आईडी एक्सचेंज किया, और जब मैं सुबह उठा तो मेरे मेल इनबॉक्स में पूरी की पूरी फुल स्क्रीन प्ले था फिल्म का, और मैंने भी मौका नहीं छोड़ा और लगे हाथ उसको फटाफट पढ़ लिया और इमीडिएटली इनको मेल पे रिप्लाई कर दिया कि सर आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म व्हेनेवर यू गोइंग टू स्टार्ट। थोड़ी बहुत हमारी बातचीत होती रही है और फिर फाइनली आज हम यहाँ मिले और मुकेश जी का मेल आया कि हम आज के अनाउंस करने वाले हैं। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि म्यूजिक तो बहुत ही बेहतरीन होगा बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल फिल्म। म्यूजिक जो है वो कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन जो किरदार मुकेश जी ने क्रिएट किए हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जिनकी एक कहानी है, जिनकी ये जर्नी है, वो इतने अर्दी, इतने रियल हैं कि आप उनको जब देखेंगे, उनकी जिंदगी को में झांकने की कोशिश करेंगे इस फिल्म के थ्रू, तो आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत मानूंगा अपने आप को कि इन सब के बीच यहाँ साथ आज बैठा हूँ और इनके द्वारा जो क्रिएशन होने वाला है उसका मैं एक हिस्सा बनूंगा, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनूंगा उस कलाकृति को आगे ले जाने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मुकेश जी एंड